All right, mute your mics. So we were discussing some basic definitions: convex polyhedron, convex cone. Then next definition we have convex hull. Convex hull. Suppose for some set is given to you, y. Basically convex hull of a set. When we will take convex hull, we will take convex hull of a set. Let y subset of Rn be a given set. One set will be given to you. Then they will ask what is the convex hull. So the smallest convex set containing this given set y is called the convex hull of y. Convex hull of y. Y पर restriction नहीं है कि y should be also convex, है ना? Y may be any given set. The smallest convex set containing y is called the convex hull of y and denoted by span of y. This is a set of spanning of y. This is convex hull. So suppose a set is given to you, you have to find the smallest convex set containing the whole y. So y need not be convex. For example, suppose circle is given to you. You know circle, so denoted by C. I am taking a unit circle. Suppose x comma y such that x square plus y square is equal to 1. Suppose this is a circle subset of R2. So what is the convex hull of a circle? Less than equal. That means a disk, है ना? Circle. Yes, sir. So smallest convex set हमें देखना है. तो smallest convex set क्या बनेगा? What is the smallest convex set containing this C? What it will be? Disk. So this will be the convex hull of C. Yeah. And of course, suppose disk ही given होता तो क्या होता? What is the convex hull? Disk हो जाता. Self. So it means if a set is convex, then the convex hull is the set itself. है ना? ये सिंपल सी observation है. If y is convex, then the convex hull y, then the convex hull of y is the set y itself. In that case, that means y will be the set y itself. It is simple observation. ये भी कह सकते हैं definition कि convex hull of a set is the intersection of all convex set containing y, है ना? One more definition is also there कि smallest convex है तो smallest का क्या हुआ? Intersection of all convex sets containing y. Yes, sir. Smallest का definition ये होती है, आपने पढ़ा भी है. स्पैन ने पढ़ा, आपने लिया स्पैन. स्पैन भी तो ये था जब वहां पढ़ते थे इसे. Yes, sir. Linear algebra में. जी. So one simple theorem based on this convex hull, page number 14 पर है. If A is any finite subset of vectors in Rn, if A is any
a finite subset of vectors, finite subset of vectors in Rn, then convex hull of A, that means span of A, is the set of, then convex hull of A is the set of all convex combinations of vectors in A, of vectors in A. ठीक बात है भैया, यही हमने लिखा है. Yes. अगर यही सपोज मैं 3 वेक्टर्स ले लूं, u1 u2 u3, suppose this is A is containing 3 vector, for example, proof से पहले जस्ट एग्जांपल. तो अगर आप कॉन्वेक्स हल लेंगे तो व्हाट इज कॉन्वेक्स हल है, इस ए का क्या है आपके पास, यू नो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो वो क्या है, ये तो है कॉन्वेक्स हल. व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस, है ना. तो वही थ्योरम कह रही है, इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस. प्रूफ आप इसका खुद करेंगे, उसमें प्रूफ गिवन है, स्मॉल प्रूफ इज देयर, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ. Then next definition we have simplex in Rn. In fact, हाँ, preliminaries की last definition है simplex. Simplex जो हम simplex method भी आगे यूज करेंगे इसी के नाम पे. Simplex in Rn. So simplex is suppose you have a n plus 1 points in Rn. Let x1 सफिक्स की जगह मैं ऊपर लिख रहा हूँ x1, जस्ट नोटेशन है, x2 xn plus 1, नीचे भी लिख सकते हैं, वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन आगे हमें पॉइंट्स की नोटेशन देनी होगी, तो वहां पर हम x और y जब पॉइंट्स Rn पे लेते हैं, है ना, तो वहां पर x को अब ऐसे या तो x1 x2 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो. लेकिन आपने ज्योमेट्री कर्व से पढ़ा था कि x1 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी होता है, अगर याद हो, है ना. x1 का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप ऊपर भी लिख सकते हो, जस्ट द नोटेशन, दे आर रिप्रेजेंटिंग जस्ट पॉइंट्स. सपोज दीज आर n plus 1 points in Rn. n plus 1 पॉइंट से Rn में ही है ना, पॉइंट से डिफरेंट. देन एक पॉइंट ज्यादा लिया है मैंने, मतलब अगर R3 है तो 4 पॉइंट्स, R2 है तो 3 पॉइंट्स, ओके, R है तो 2 पॉइंट्स. देन द convex set spanned by these n plus 1 points, these n plus 1 points is called n simplex. N simplex in R. Okay, means simplex is, तो n डायमेंशन में क्या हो गया, that means you can say, that means I can say that a simplex in n dimension, in n dimension is a convex polyhedron having exactly n plus 1, having exactly n plus 1 vertices, उसे हम सिंप्लेक्स बोलेंगे. n डायमेंशन में n plus 1 वर्टिसेस हो,
ठीक, जैसे अगर आपके पास 0 डायमेंशन है तो इन 0 डायमेंशन इट इज अ पॉइंट, इन 1 डायमेंशन इट इज अ लाइन सेगमेंट, 2 डायमेंशन इट इज अ ट्राइंगल, है ना. One more, you have one extra point, and then the convex side is spanned by this. That is a simplex. That is called simplex. So you can say, okay, in one dimension, that means on Rn, R1, it is means simplex. It is a line segment. line segment. तो इसमें line segment जो है ये आपका simplex कहलाएगा. In 2 dimension, triangle. it is a triangle, and so on. It is a triangle. ठीक है, एंड सो ऑन. तो अगर 2 डायमेंशन में R2 है आपके पास, तो R2 में यू विल बी टेक 3 पॉइंट्स एंड उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो ट्रायंगल बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स इन Rn. So it was some preliminaries. Now we come to next topic, because we want to start your basic simplex method. Simplex method में कुछ basic definitions है पहले. So next topic is chapter 4. अभी तक जो whatever we have done so far, these comes in the preliminaries. अगर आप बुक में देखेंगे तो in your book it is given in the very first chapter. Chapter 0 दिया उसको उन्होंने name, which is preliminaries. ये सब preliminaries है आपकी convex sets, convex hull, convex core. These are the preliminaries of operational research optimization course. Now for next chapter, chapter 4. Linear programming problem, LPP, simplex method. Simplex method. So as I told you before also, that when you have more than 2 variables, more than 2 key decision variables, then we can apply this simplex method. Then this graphical method will not work. So we can apply this simplex method when you have more than 2 decision variables. सर Okay? दो के लिए नहीं कर सकते इसको हैं? अप्लाई. हाँ? अगर दो डिसीजन वेरिएबल्स उनके लिए सिंप्लेक्स दो मेथड के भी लिए अप्लाई कर ही कर सकते हैं, हैं. दो के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन दो के लिए वी हैव ऑलरेडी वन इजीएस्ट मेथड, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है. तो इफ वो इट इज इससे इजी नॉट, होगा. ठीक. हाँ, इफ इट इज नॉट गिवन टू यू, सपोज 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम गिवन है एंड मेथड इज नॉट मेंशन, देन ऑलवेज यू विल यूज ग्राफिकल मेथड. दैट इज क्वाइट इजी मेथड है. अभी आपको सिंप्लेक्स एक्सप्लेन करूंगा तो यू विल सी बाय योरसेल्फ कि सिंप्लेक्स मेथड इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड. तो अगर 2 डिसीजन वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है, you will apply only graphical method, है ना. there is no alternate of graphical method. लेकिन more than 2 variable में you cannot apply graphical method, you will have to apply simplex method. more than 2 का मतलब चाहे 3 4 5 6 कितने भी decision variables हो, but 2 variable को भी हम solve कर सकते हैं simplex method से. we will do some problems 2 decision variables की भी, graphical से और simplex से. दोनों के आंसर सेम होंगे, लेकिन आप देखेंगे ग्राफिकल में जल्दी हो जाएगा, सिंप्लेक्स में टाइम लगेगा. ओके ओके सर. हाँ, तो the simplex method जो है basically you can write here that this method is applicable when you have more than 2 variables, है ना. लिख सकते हैं when decision variables are greater than equal to 2, है ना. इक्वल टू में भी सॉल्व हो जाएगा और उससे ज्यादा हो. So before that we have some definition also here, जो terminologies I will be using in simplex method. First thing is basic solution. ये चैप्टर आपका 4 बुक में जो मैंने आपको शेयर किया, इट इज गिवन इन पेज नंबर 87. You can see the detail of this. There is some theory given about the simplex method. How does it work? So before going in this method, I am taking one definition. Actually, these are terminology I will be using. Basic solution.
बेसिक सॉल्यूशन। ये बताइए जैम का एग्जाम पोस्टपोन हो गया या अभी र्यूमर्स है सिर्फ, एनी आइडिया? सर अभी डिसीजन पेंडिंग में है, अभी कुछ नहीं डिसीजन आया है। अच्छा, मतलब चांसेस आर के मे बी पोस्टपोन है। चांसेस हैं 60% के पोस्टपोन के। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं आया है। नो सर, नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कंसर्न कर रहे थे तो मैंने कहा था। ठीक है। सो सब बेसिक सॉल्यूशन इज व्हाट? So you know that whenever we are solving this linear programming problem, what we have a system of linear equation, है ना? जो constants हैं, that is a system of linear equation. Equation इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि inequalities को we can change to equations by using slack and surplus variables. Simplex method में हम वही करेंगे, equation में change करेंगे. इनफैक्ट ग्राफिकल में भी यही करते थे, इक्वेशन बनाते थे फिर उसके बाद एरिया लेते थे. So suppose आपको m साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड n अननोन्स में सिस्टम की बीन है ना. लेट कंसीडर अ सिस्टम ऑफ m लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि हम एलपीपी की बात कर रहे हैं, जाहिर है तो लीनियर इक्वेशन देंगे विद n अननोन्स. और n अननोन्स है आपके पास, n अननोन्स है ना. एंड आई एम कंसीडरिंग दैट m लेस देन n. मतलब इक्वेशंस आपके पास क्या है, हियर देन नंबर ऑफ अननोन्स. लाइक 2 इक्वेशंस हैं तो 3 अननोन्स हैं, या 3 इक्वेशंस हैं तो 5 6 7 अननोन्स हैं. तो द सिस्टम विल बी रिटन बाय यू नो a x इज इक्वल टू b. मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, वेयर a इज अ m क्रॉस n, वेयर x को हम क्या लिखते हैं, x ट्रांसपोज बिलोंग्स टू Rn, क्योंकि n अननोन है. ट्रांसपोज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होता है, मैट्रिक्स का x में कैसे प्रोडक्ट करते हैं, x कॉलम में होता है आपके पास, है ना. तो कॉलम ट्रांसपोज लिख दिया, यहाँ x लिखा आपने, लेकिन ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि व्हेन यू विल राइट x एज अ वेक्टर x1 x2 xn, इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि आप इसे कॉलम में लिखेंगे, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, वरना प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है. बिकॉज a इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n एंड इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कितनी, n क्रॉस 1, है ना. A is a matrix m cross n, x is a matrix n cross 1. तभी तो प्रोडक्ट कर पाएंगे आप जब दिस शुड बी कॉमन, इसलिए हम x ट्रांसपोज यूज करते हैं. ओके, Yes, sir. तो यस हाँ, सर. तो इसलिए अंडरस्टूड है. यहाँ x लिखा होगा तो यहाँ ट्रांसपोज होगा, या यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख सकते हैं. इन सम बुक्स यू विल सी यही x ट्रांसपोज लिखा होगा, कहीं पर a ट्रांसपोज x लिखा होगा, वो एक ही बात है ना. वेयर a इज m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक m, इसकी रैंक m है. ठीक है, रैंक आपको पता है, मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो जो आपकी या तो कई फॉर्म से रैंक निकालने की, बताइए कोई एक तरीका रैंक निकालने का याद हो किसी को तो. The Number reduced of row linearly echelon independent rows in row your reduced pivots echelon taking. form. हाँ, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज. हाँ भाई, वन वे के यू जस्ट रिड्यूस इट इनटू रो रिड्यूस इक्वेलॉन फॉर्म, तो नंबर ऑफ li रोज इज द रैंक, है ना. या इसमें क्या करें, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ जाएगा दैट इज रैंक. यही तो होता है. Minor निकाल. हाँ वही, मतलब जब उसको आपके कोई अगर दे रखा है तो यू विल बी फाइंडिंग m क्रॉस m ऑर्डर का जो आपके पास फर्स्ट वो आ जाएगा ना, लेकिन वो स्क्वायर में वर्क करता है. तो सपोज इज एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक m. रैंक m का मतलब ये है कि अगर आप इसमें से कोई m क्रॉस m की मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नॉन जीरो होगा. यही तो हुआ रैंक Non zero है. हाँ. और सपोज b, ये जो b है आपका, ये b नहीं, अब हम एक कंसीडर करेंगे b, कैपिटल B, इसी से बेसिक सॉल्यूशन बनेगा. लेट b बी एनी m क्रॉस m सब मैट्रिक्स. सब मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, बिकॉज इट इज m क्रॉस n, तो यहाँ से हम m क्रॉस m की तो सब मैट्रिक्स बना ही सकते हैं बहुत सारी, है ना. कोई भी एक ले ली हमने,
B be any M cross M sub matrix. Is it clear? जैसे आपके पास सपोज 3 ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है सपोज करिए, कितने बाई कितने की है 3 कितनी है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 की है, मुझे 3 क्रॉस 2 की बनानी होती है अगर, तो क्योंकि मैंने M क्या M को स्मॉल ले रहा हूं मैं, तो इसे एक काम करते हैं इतना ले लो 1 2 4 5 एंड 3 1 कॉलम बढ़ा देते हैं ऐसे काम करते हैं, 1 मिनट I want to take M less than N. That सही means तो था सर। सही था, यस सर। 3 अननोन्स थे तो 1 2 3 4 5 6 इसमें कितने अननोन्स है x1 x2 x3 अननोन्स है और 2 वो है, हाँ ठीक तो था, तो 1 2 2 into 3 ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सपोज इसकी रैंक अगर 2 है, सपोज रैंक इज 2, तो हियर आई कैन टेक बी एनी 2 by 2 मैट्रिक्स, है ना, कौन सी ले सकता हूँ फर्स्ट 2 ले सकता हूँ सब मैट्रिक्स, इट मे बी बी, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर बी के लिए 1 2 फर्स्ट कॉलम Three. थर्ड 3 कॉलम चॉइसेस 3 चॉइसेस है ना, तो वही हमने कहा बी बी एनी एम क्रॉस एम सब मैट्रिक्स, कोई भी सब मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे 3 चॉइसेस कोई भी हो सकती है, formed by M Li columns of A, M Li columns of A, ये जो आपके अगर मैं इसे A कह दूं तो कोई भी हमने कॉलम्स ले लिए उससे बनाया, देन a solution obtained by setting n minus m variables, ये n minus m variables कौन से होंगे, not associated with the columns of B, not associated with the columns of B, जैसे आपके पास पता है कि ये आपके पास वेरिएबल्स क्या होंगे x1 x2 x3 सपोज, ठीक, अब आपने B आपने लिया ये वाला फर्स्ट 2 ले लिया 2 क्रॉस 2 ये वाली ले ली, तो कितने वेरिएबल में बचा आपके पास n माइनस m 1 बचा, तो नॉट एसोसिएटेड कौन सा है, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड x3 है ना, x3 तो x3 को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वेरिएबल नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ B इक्वल टू 0, है ना, then a solution obtained by setting n minus m variables not associated with the column of B equal to 0 and solving the, अब आप सिस्टम को सॉल्व करेंगे, तो वैसे भी जब आपके पास 3 या नोड से 2 इक्वेशंस है तो क्या होगा इसमें, वन वेरिएबल यू हैव टू कंसीडर एज अ फ्री वेरिएबल, है ना, यस सर। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं मान लो x1 plus x2 इज इक्वल, एक ले लूं सपोज चलो इज इक्वल टू 4, अब इसे आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा x2 विल बी अ फ्री वेरिएबल, यस सर। है ना, x2 को कुछ वैल्यू आपको चूज करनी पड़ेगी, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा कभी भी, सेम थिंग इज हियर 3 अननोन से 2 इक्वेशन है, तो वही कह रहे हैं कि इफ यू हैव m क्रॉस m मैट्रिक्स, एक m क्रॉस m की सब मैट्रिक्स चूज करेंगे, n माइनस m जो फ्री वेरिएबल्स होंगे, फ्री वेरिएबल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, तो जो बाकी फ्री वेरिएबल्स बचे विच आर नॉट एसोसिएटेड विद b, उन्हें हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं, इन जनरल आप कुछ भी रख सकते हैं फ्री वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जिसको 0 के इक्वल पुट करा आपने, जैसे x2 को 0 पुट कर दिया तो x1 कितना आ गया 4 आ गया, तो ये जो सॉल्यूशन आया x1 4 x2 0, दिस इज कॉल्ड basic solution. So here in general I am writing, so by putting n minus m variables not associated to b equal to 0 and solving the resulting system, क्योंकि अब आपके पास जो सिस्टम बचेगा, यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन थी मैंने लिया है तो आपके पास सिस्टम एक ही था, लेकिन अगर पूरा सिस्टम है मान लीजिए तो कुछ इक्वेशंस बचेंगी, m इक्वेशंस होंगी, जैसे यहाँ पर 2 होंगी, उन्हें सॉल्व करेंगे एंड सॉल्विंग द रिजल्टिंग सिस्टम, resulting system is called a
basic solution to the given system of equations. ठीक है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करूंगा तो वहां पे फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम एक बेसिक सॉल्यूशन लेके चलेंगे। इनफैक्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेके चलेंगे। फिजिबल वर्ड और यूज कर रहा हूँ, बताऊंगा। फिजिबल आपको पता है क्या होता है। अगर सॉल्यूशन सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बेसिक फिजिबल। सो बेसिक सॉल्यूशन इज व्हाट, you have given a system of equations n cross n. M are the equations, n are the knowns. You just consider any submatrix and solve the system by taking n minus m variables which are not associated to v to 0. तो जो सॉल्यूशन निकलेगा दैट इज बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? ये यहाँ मैंने आपको हाथ प्रॉब्लम ले ली, साथ में बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स m से एसोसिएटेड है वो करते हैं बेसिक वेरिएबल्स। द m वेरिएबल्स, two things we will be using, basic variable, non basic variable. So the m variables है ना, they called basic variables. m कौन से हैं, जो आपके किससे एसोसिएटेड है, सब मैट्रिक्स से, है ना। और दे नीड नॉट बी, ये m वेरिएबल्स क्या है, ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी, ये भी जीरो आ सकते हो, तो डिपेंड करेगा आपका सिस्टम इक्वेशन कैसा है ना। तो दे मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। द m वेरिएबल्स कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स, है ना। एंड जो m है, तो बाकी जो बचे n माइनस m वेरिएबल्स वो क्या होंगे, नॉन बेसिक एंड n माइनस m रिमेनिंग लिख सकते हैं। एंड रिमेनिंग n माइनस m वेरिएबल्स विच आर ऑलवेज जीरो, उनको तो हम जीरो पुट कर ही रहे हैं ना, विच आर ऑलवेज जीरो, दे कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स, दे कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स। non-basic variables, and the matrix is called basis matrix। जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी, द m क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, क्योंकि इसकी रैंक क्या थी, यू नो m थी। द m क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स B is called a basis matrix, basis matrix। One more definition we have, degenerate solution, degenerate solution, G-N-E-R-A-T, degenerate solution, a basic solution to the system is called degenerate if one or more of the basic variables are zero। ठीक है, और यू कैन से एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। बेसिक वेरिएबल आपके पास क्या है, ये जो m वेरिएबल्स है ना, एज आई टोल्ड यू, अब ये जीरो भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका सिस्टम इक्वेशन बन जाएगा। अब उसका सॉल्यूशन तो इट मे बी एनीथिंग। अगर कोई भी जीरो आ गया उसमें, तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डीजनरेट। नॉन बेसिक अदरवाइज ऑलवेज जीरो, नॉन बेसिक तो ऑलवेज जीरो है। अगर बेसिक भी जीरो आ गया तो सॉल्यूशन को हम डीजनरेट सॉल्यूशन कहते हैं।
एक प्रॉब्लम ले लेते हैं क्विकली। आई एम टेकिंग प्रॉब्लम नंबर 401, पेज नंबर 88 पर है। सॉल्व प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर। ऑब्टेन all the basic solutions to the following system of linear equations. Linear equations. Equation आपको given है x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 4. 2x1 plus x2 plus 5x3 is equal to 5. Okay. All the basic solution हमें find करने हैं। So here you can see what is m. M is how much? 2 2. and n is 3. 3. है ना? You have this. So if you will write a matrix A, coefficient matrix 1 2 1 1 2 1, 1 5. ये आपकी A हो गई। x अगर x में लिख दूं तो you have 3 x1 x2 x3 और this is your B. B को भी मैं B. कॉलम में लिखूंगा 4 5. So you know first thing is what? You have to construct your sub matrix B. That is called your B. basis matrix. है ना? So the possible basis matrices are, you know how many choices are there? 3C2 है ना? 3 में से 2 लेना है तो 3C2 C2 3C2 choice है, yes are. So I can write suppose B1 1 2 2 1, B2 1 1 2 5 and B3 कौन सा बचा भाई? 2 1 1 5. 5. ये 3 चॉइसेस हो गई 2 by 2 की, क्योंकि 2 by 2 की सब मैट्रिक्स लेनी है। अब इनसे यू विल बी गेटिंग द सॉल्यूशंस। तो कितने 3? वी कैन गेट 3 बेसिक सॉल्यूशंस। पहले B1 ले लेते हैं। लेट अस टेक B1, टेक B1 फर्स्ट। 1 2 2 1। तो आपको मालूम है इससे एसोसिएटेड है x1 x2 x3। दीज आर द वेरिएबल एसोसिएटेड विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। So if you will take B1 2 2 1, then what is the non-basic variable? Which one is non-basic variable? x3 x3. x3 को 0 पुट कर दिया हमने। जब x3 को 0 पुट कर दिया तो you got a system। बस इन दोनों को सॉल्व करना है। x1 plus 2x2 is equal to 4, 2x1 plus x2 is equal to 5. It's a simple system equation, सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ रहा है बताओ? x1 is equal to 2 से मल्टीप्लाई करो, कैसे कर दो या इसे कैसे कर दो, पहले होना चाहिए था तीर में तो Sir, यार। 2 and 1. गुड। x1 is 2, x2 is 1, x2 is 1. है ना? तो वन बेसिक सॉल्यूशन इज व्हाट? सो वन बेसिक सॉल्यूशन इज 2 1 2 0। तो वन बेसिक सॉल्यूशन इज, यू कैन राइट, अगर हम इसे लिख दे 1 2 सॉरी 2 1, x2 2 है, x1 2 2 1 0। 0 ये डीजेनरेट सॉल्यूशन है या नॉन डीजेनरेट, कैसा है ये? डिनरेट है सर, 0 हो रहा है एक। कौन सा 0 हो Degenerate रहा? एक 0 नहीं. नहीं अभी बेसिक या, है ये। देखो क्या लिखा था, बेसिक वेरिएबल 0 है ना? नॉन बेसिक तो 0 होगा ही हमेशा। सर बेसिक्स तो x1 एंड x2 है ना, उसमें कोई 0 है ही नहीं। तो फिर क्या है ये? डीजेनरेट, नॉन डिजेनरेट। नॉन डीजेनरेट। चलो, सिमिलरली यू कैन फाइंड B2 B3 है ना? सिमिलरली अब B2 लेंगे आप, क्योंकि हमें सारे फाइंड करने हैं। ऑब्टेन ऑल था, तो आई एम जस्ट राइटिंग सिमिलरली फॉर B2 is equal to 1 1 2 5 we get। अब इसमें आपको क्या रखना है? 1 1 2 5 में B2 क्या देते हैं एक बार देख लेते हैं। 1 1 2 5 1 1 2 5, x2 0 रखेंगे, x2 0 पुट करा तो x1 is 5,
x3 is -1। ये भी आपका डी जनरेट है, लेकिन इसमें एक सॉल्यूशन जो है वो निगेटिव आ गया है ना। तो बेसिक सॉल्यूशन व्हाट, here your basic solution is 5 - 1 0। इट इज नॉन डिजनरेट, लेकिन अगर कोई भी एक नेगेटिव आ गया तो इट इज आल्सो इनफीजिबल। सर x सॉरी x2 0 है, हाँ। X- x2 0, x3 -1, but it is what, infeasible। it is called infeasible basic solution। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिंस कोई बेसिक वेरिएबल आपका अगर नेगेटिव आ गया, देखो नॉन बेसिक तो हमेशा 0 रहेगा, कोई अगर बेसिक वेरिएबल नेगेटिव आ जाता है लेस देन 0 तो वो इनफीजिबल हो गया, क्योंकि फिजिबल कंडीशन क्या होती है, नॉन नेगेटिव वाली हमेशा। फॉर B3 क्या था, 2115 2115। B3 I took 2115 x2 x3 x2 x3। so we get by putting x1 0, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x2 will be coming 5/3, x3 will be 2/3। so here basic solution is what, 0, 5/3, 2/3। here you can see all the basic variables are positive and non-zero, so it is non-degenerate and feasible solution। कैसा है ये, feasible। हमें feasible solution ही चाहिए होता है, इसको आप ये लिख सकते हैं बेसिक feasible solution। इस वर्ड का मैं यूज करूंगा बार बार सिंप्लेक्स मेथड में, बेसिक feasible solution, शॉर्ट में लिखूंगा BFS। ठीक है, तो बेसिक feasible solution कौन सा होगा, वो बेसिक सॉल्यूशंस विच आर feasible आल्सो कॉल्ड बेसिक feasible solution। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो भी वो बेसिक feasible solution होता, लेकिन डीजनरेट हो जाता बस अगर 0 आ जाता, है ना, क्योंकि 0 इज आल्सो feasible। नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस बस हाँ, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हाँ। सर दोबारा से बताना। क्या बताऊं, ये सर आपको यही सर नेगेटिव और 0 वाला सर। भाई 0 वाला तो बता दिया, आपका नॉन बेसिक तो हमेशा 0 होगा। इफ योर बेसिक वेरिएबल्स आर 0 दे कॉल डीजनरेट, अदरवाइज नॉन डीजनरेट। अब बेसिक सॉल्यूशंस अगर आपके पास नेगेटिव आ जाते हैं, जैसे नेगेटिव आ गया, तो हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इनफीजिबल बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है सर फर्स्ट वाला भी BFS। हाँ, फर्स्ट वाला भी BFS था एग्जैक्टली, ये भी आपका BFS था। ठीक, अगर कोई भी बेसिक वेरिएबल नेगेटिव आ जाता है दैट विल कॉल्ड बेसिक इनफीजिबल सॉल्यूशन, और अगर सारे बेसिक वैल्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं तो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। यही आपका सिंप्लेक्स मेथड का फर्स्ट स्टेप होगा, वी विल टेक ऑल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है।